شہر کے مختلف علاقوں میں علل صبح ہونے والی ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ اقبال ٹاؤن، اچرا، سمن آباد، کلمہ چوک، کینال روڈ، گلبرگ، مال روڈ، غازی روڈ، فیروز پور روڈ، ڈیفنس کے علاقوں میں ہلکی بارش برسی۔ تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے۔ بالکل اسامہ، یہ صورتحال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج کے روز بھی ہم نے دیکھنے میں ہے کہ صبح کے اوقات میں پراپر بارش سامنے شہر کے بیشتر مقامات پر بارش تھی، جس میں فیروز پور روڈ، کنال روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈیفنس، گڑھی شاہو، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ پراپر بارش برسی، جس کے بعد موسم قدرے خوشگوار ہو چکا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا بھی احساس ابھی تک تو موجود ہے موسم میں۔ دیکھنے کہ سارا دن کیا صورتحال رہتی ہے۔ محکمہ موسمیات والوں نے بھی بتایا کہ سارا دن جو ہے بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی، اور سکیٹرڈ تھنڈر سٹارمز بتائے جا چکے ہیں کہ مختلف جگہ پر جو ہے وقفے وقفے سے سارا دن ہلکی بارش دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور آئندہ 1 یا 2 روز تک بھی یہی سلسلہ جاری رہنے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں کہ صبح کے اوقات میں بارش دیکھی جائے گی، جبکہ دوپہر کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں صرف بادلوں کا بسیرا ہمیں جو ہے وہ شہر پر نظر آئے گا، یعنی بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی، لیکن صبح کے اوقات میں جو ہے بارش ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں درجہ حرارت کی، تو بارش کے باعث درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ درجہ حرارت جو ہے اس وقت جو ہے وہ 30 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری تک پیک کرے گا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے درجہ حرارت جو تھا وہ 45 47 کو ٹچ کرا، تو اس کے مقابلے میں درجہ حرارت میں کافی بہتری ہے۔ شہریوں کے لیے بھی ایک خوشائند بات ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پریکاشنری میئرز جو ہے خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہبس کا موسم ہے، تو چاہیے کہ واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھے، اور گرمی کی جو ہیٹ اسٹروک ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے پریکاشنری میئرز لازمی اختیار کریں، تاکہ کسی بھی قسم کی جو مضر اثرات ہیں اس سے شہری کم سے کم محفوظ رہ سکے۔ جی آپ کا شکریہ۔ برائلر گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ آج مرغی کا گوشت 4 روپے سستا ہو کر 595 روپے فی کلو۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے فی کلو کمی آئی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 260 روپے برقرار ہے۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے عبدالقادر۔ آج بالکل مارکیٹ میں جو برائلر کی ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی ہے، اس میں جو ہے وہ قدرے بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج برائلر گوشت کی قیمت میں 4 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ روز برائلر گوشت کی قیمت 599 روپے فی کلو سرکاری ریٹوں میں مقرر کی گئی تھی۔ آج 4 روپے کمی کے بعد 595 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے تک جو ہے وہ ریلیف دیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا آج 380، جبکہ ہول سیل یا سپلائی ریٹ زندہ برائلر کا 395 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ تاہم پرچون بازاروں میں زندہ برائلر 410 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں استحکام دیکھنے کو مل رہا، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور 260 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھے گئے۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 7680 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی شکریہ عبدالقادر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دکاندار ہو جائیں تیار۔ 42 شہروں کے دکانداروں سے فکس ٹیکس کی وصولی کا آغاز۔ ایف بی آر نے چھوٹے دکانداروں کے لیے ماہانہ ٹیکس اسکیم کا ایس آر او جاری کر دیا۔ چھوٹے دکانداروں سے ماہانہ 100 روپے سے 20,000 روپے تک ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ٹیکس کا تعین علاقہ دکان کے سائز کے تحت کیا جائے گا۔ عارضی کھوکھوں کو ماہانہ ایڈوانس ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ ایس آر او کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ آئی ایم ایف کو کرائی گئی ایک اور یقین دہانی پر عمل درآمد۔ چھوٹے دکانداروں سے فکس ٹیکس کی وصولی کا ایس آر او جاری۔ ایف بی آر نے تاجر دوست اسکیم کا دائرہ ملک کے 42 شہروں تک بڑھا دیا۔ تاجروں کو ماہانہ بنیاد پر 100 روپے سے 20,000 روپے تک ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس کا تعین دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کیا جائے گا۔ فیئر مارکیٹ ویلیو کا تعین ایف بی آر خود کرے گا۔ ریٹیلر اسکیم ایبٹ آباد، اٹک، بھاول نگر، بھاولپور، چکوال میں بھی نافذ کر دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، گھوٹکی، گجرات، گوادر میں بھی تاجروں کی رجسٹریشن ہوگی۔ حافظ آباد، ہری پور، حیدرآباد، اسلام آباد، جنگ، جہلم، کراچی بھی فہرست میں شامل ہیں۔ قصور، خوشاب، لاہور، لاڑکانہ، لسبیلا، لودھراں، منڈی بہاؤالدین میں بھی تاجر دوست اسکیم نافذ کر دی گئی۔ مانسیرہ، مردان، میرپور خاص، ملتان، ننکانہ، نارووال، پشاور میں بھی رجسٹریشن جاری ہے۔ کوئٹہ، رحیم یار خان، راولپنڈی، ساہیوال، سرگودا، شیخوپورہ، سیالکوٹ میں بھی اسکیم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ سکھر اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی تاجر دوست اسکیم نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ بورڈ کے ملازمین کے مذاکرات کامیاب۔ 700 سے زائد ملازمین کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ احتجاجی ملازمین نے ڈی جی زراعت محمد اکرم سے مذاکرات کیے۔
3 रोज से बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन ने क्लब रोड पर 3 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। महकमा ज़राअत के शोबे वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब रहे। 700 से ज़ायद एहतजाजी मुलाजमीन ने डीजी ज़राअत मोहम्मद अकरम से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मेंबरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि आज वज़ीर आला ऑफिस में मीटिंग हुई थी। उम्मीद है आइंदा होने वाली मीटिंग में मामलात हल हो जाएंगे और हमें नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन दे रहे हैं, अगर इसको एक्सटेंशन मिल जाती है, 2 बजे मीटिंग है, तो हमारी जॉब फ़ौरन बहाल हो जाएगी। उन्होंने हमें इस बात की श्योरिटी दी है कि ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे NPW के 750 बंदे हैं, इनमें से किसी एक बंदे को भी यहाँ से जॉब लेस नहीं किया जाएगा। खुदा ना करे 15 दिन के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता तो इंशाल्लाह दोबारा हम इन रोड्स पे आएंगे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि अगर इंतजामिया ने बहाल ना किया तो 15 रोज बाद दोबारा धरना देंगे। धरना खत्म होते ही 4 रोज से बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीमेंट इंडस्ट्री बंद होने से लाखों अफराद बेरोजगार। चेयरमैन आल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर चौधरी साजिद अली कहते हैं हुकूमत नाजायज़ टैक्स लगा रही है। सीमेंट की फ़ी बोरी 35 रुपये टैक्स मांगा जा रहा है। सीमेंट की एक बोरी पर 8 से 10 रुपये का मार्जिन है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ मोहम्मद मुनीर चौधरी, चेयरमैन चौधरी साजिद अली, वाइस चेयरमैन ताहिर हमीद और एग्जेक्टिव मेंबरान नुमान अहमद, आरिफ महमूद खान, आसिफ सईद, शेख अब्दुल मजीद, मलिक सईद और राव नवीद अख्तर शरीक हुए। चौधरी साजिद अली का कहना था कि हुकूमत ने सीमेंट इंडस्ट्री पर इजाफी टैक्स का बोझ डाल दिया है। रिटेलर्स भी इस बोझ तले दब गए हैं। हम टैक्स पहले से ज़्यादा देने को तैयार हैं, टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी जाए। हमारे तरीक़ा कार जो गवर्नमेंट ने वज़ा किया है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। चौधरी साजिद अली का मजीद कहना था कि सीमेंट इंडस्ट्री को हड़ताल पर गए 11 रोज हो गए, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। आज हड़ताल पे गए हुए हमें 11 रोज़ गुजर चुके हैं। गवर्नमेंट के किसी अदारे, FBR, वजारत ख़जाना, किसी शख्स ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ओहदेदारों का कहना था कि हम हुकूमत को टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमत लेने को तैयार नहीं। हुकूमत हमारे साथ मुशावरत करे और टैक्स वसूली का तरीक़ाकार दुरुस्त करे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की वाज़ेह हदायत थी कि ताजरों से मुशावरत के बाद टैक्स लगाया जाए। ताजर रहनुमा नईम मीर की FBR हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ताजर 2 स्कीम के तहत एडवांस टैक्स के मामला चल रहे थे। आज FBR ने एक SRO जारी किया जिसमें बताया गया कि किस इलाके में कितना टैक्स लगेगा। ताजी रहनुमा नईम मीर ने FBR हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं वज़ीर आज़म की वाज़ेह हदायत थी कि FBR टैक्स टेबल बनाकर ताजरों से मुशावरत करे। मामले में बेशतर RTO शामिल रहे। टैक्स सिर्फ रिटेलर्स पर लगाया गया है, ये टैक्स सर्विस प्रोवाइडर पर नहीं लगाए गए। ये एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट हो सकता है। ये टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स पे नहीं है, यानी हमारे कमर्शियल बाज़ारों में, मार्केटों में जहाँ कहीं कोई हजाम की दुकान है, जहाँ कहीं कोई मोची बैठा है, कोई पेंचर लगाने वाला बैठा है और इस तरह के लोग, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये तमाम लोग जो हैं वो इस टैक्स से मुस्तस्ना है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपकी आमदन कम और टैक्स ज्यादा है, इसका भी तरीकाकार बनाया गया है। साल बाद जो रिफंड निकलेगा वो सारिफ के अकाउंट में जाएगा। आपकी आमदन कम है और आप पर टैक्स ज़्यादा है और साल बाद आपका रिफ़ंड निकलता है, तो इसका भी एक बड़ा तरीक़ेकार मुतय्यन किया है, ख़ुदकार तरीक़ेकार, और उसका वजाहती सर्कुलर जो है वो भी आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में आ जाएगा। अगर आपका रिफ़ंड निकलता है तो वो ख़ुदकार तरीके से आपके अकाउंट में पैसे वापस आएंगे और कहीं कोई रिश्वत या करप्शन की बात नहीं होगी जो हम अमूमन रिफ़ंड के मामलात में सुना करते हैं। नईम मीर ने कहा कि ये टैक्स दुकान मालिकान अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर खुराक पंजाब की हिदायत पर आटे के निर्खों की कड़ी निगरानी जारी। लाहौर डिवीज़न में 112 मुकामात से मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतें चेक की गई हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है।
पंजाब भर में आटे के निर्खों की कड़ी निगरानी जारी। सुबह भर में 679 आटा ब्रांड्स के 10 और 20 किलो के थैलों की कीमतों को चेक किया गया। लाहौर डिवीजन में 112, रावलपिंडी 164, गुजरात में 48 मुख्तलिफ आटा ब्रांड्स की कीमतें चेक की गईं। गुजरांवाला डिवीजन में 52, फैसलाबाद 67, सरगोदा में 32 आटा ब्रांड्स के निर्खों को मॉनिटर किया गया। सूबाई वजीर खुराक बलाल यासीन का कहना है कि 24 घंटे में 3279 मीट्रिक टन आटे और मैदे की बैनुस्सबाई तरसील रिकॉर्ड की गई। आम मार्केट में आटे के निर्खों में जायद वसूली की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानब जिली इंतजामिया लाहौर का गरां फरोशी के खिलाफ सख्त एक्शन। 2623 मुकामात की चेकिंग, 13 गिरफ्तारियां, 11 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया। 138 खिलाफ वर्जियों पर 7 लाख रुपए के जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जैनब ताहिर ने अड्डा प्लॉट में तनूरों और दुकानों पर कीमतों का जायजा लिया। गरां फरोशी पर एक फल फरोश को 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि मेगा स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, फ्रूट और सब्जियों के स्टॉल्स पर रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेदन करवाया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गई। सब्जी, फल हों या दालें, कहीं भी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। मार्केट में दालें लिस्ट से 100 रुपए फी किलो तक महंगी फरोख्त हो रही हैं। दालों की सरकारी रेट लिस्ट भी काम ना आई। शहर भर में मनमाने निर्ख पर दालों की फरोख्त जारी है। डीसी रेट सिर्फ दुकान पर लटके नजर आने लगे। दाल चना 280 रुपए की बजाय 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। काले चने 305 रुपए की बजाय 350 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। लाल माश का सरकारी रेट 560 रुपए है, लेकिन 650 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। दाल मूंग 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी रेट 310 रुपए किलो है। बेसन 300 रुपए की बजाय 350 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। चावल बासमती का सरकारी रेट 270 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में चावल 280 से 350 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मामला। जिला कचहरी लाहौर ने मुकदमे की मुलजिमा आमना अरूज का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने दीगर 11 मुलजिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब मुलजिमा आमना अरूज बारे मज़ीद तफसीलात सामने आई। मुलजिमा शोबिज़ में कैरियर बनाना चाहती थी। 2 साल कबल गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल हुई। लाहौर जिला कचहरी में मारूफ ड्रामा निगार और हदायतकार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट नबीला आमिर ने समाअत की। पुलिस ने मुलजिमा आमना अरूज के मजीद रिमांड की सदा की। अदालत ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए दीगर 11 मुलजिमों को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली आमना अरूज बारे मजीद तफसीलात सामने आई हैं। मुलजिमा 2 साल कबल गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल हुई। आमना अरूज की एक निजी महफिल में मरकजी मुलजिम हसन से मुलाकात हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन शाह ने आमना अरूज को मॉडल और एक्टर बनाने का वादा किया, जिसके बाद मुलजिमा आमना मुतअद्दिद पार्टियों में मुलजिम हसन के साथ शरीक हुई। मुलजिम हसन की पार्टियों में सियासी शख्सियात समेत शहर के मालदार अफराद शरीक होते रहे। पुलिस के मुताबिक गैंग का मरकजी मुलजिम हसन शाह ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस को हसन शाह और उसके 3 साथियों की तलाश है। अब CPO और DPO लगने के लिए कारकर्दगी दिखाना होगी। अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले पुलिस ऑफिसर पोस्टिंग जारी रख सकेंगे, जबकि बुरी कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की फहरिस्त IG पंजाब को भिजवा दी गई। 100 नंबरों पर मुश्तमिल फहरिस्त की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी। फहरिस्त को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिसर्स की कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकिस कारकर्दगी वाले DPOs को पहले वार्निंग मिलेगी, फिर परफॉर्मेंस बेहतर ना होने पर ओहदों से हटा दिया जाएगा। बर वक्त FIR के इंदराज पर 3 नंबर, जबकि SOPs पर अमल दरामद पर 3 नंबर दिए जाएंगे। नो गो एरिया और गैर महफूज रोड पर कार्रवाइयों के 3 और सर्च ऑपरेशन के 3 नंबर मिलेंगे। आपको बताएं कि अब CPO और DPO को कारकर्दगी दिखाना होगी। इस हवाले से इंडिकेटर जारी कर दिए गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस वाले ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि दूसरे DPOs को कारकर्दगी दिखाना होगी। उसके बाद ये पोस्टिंग दी जाएगी। नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से ये भी बताएं कि अगर DPOs अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो पहले उनको वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा।